آج یکم نومبر 2015 ہے۔ یکم نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے غازیوں نے، مجاہدوں نے، ہیروز نے مل کر اس خطے کو آزاد کیا اور مملکت خداداد پاکستان میں اس کا الحاق کیا، اور آج ہم آزادی کے سانسیں لے رہے ہیں۔ میں آج جس جگہ پہ کھڑا ہوں وہ یادگار شہداء ہے، اور یہ یادگار انہی غازیوں اور شہیدوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے جنہوں نے 1947-48 کی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس خطے کو آزاد کرایا۔ ناظرین، آج کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اگر جان کی قربانی دینے کا وقت آ جائے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں۔ آج ہم جائیں گے اپنے عوام کی طرف، لوگوں کی طرف، نوجوانوں کی طرف اور بزرگوں کی طرف، اور آج کے دن کے حوالے سے ان سے سوالات کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے اسلام آباد سپر دانے کا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں عوام کی طرف، آئیے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں ہسپتال روڈ پہ آیا ہوا ہوں اور ہمارے ایک خاص دوست ہیں، ان سے ہم کچھ بات چیت کریں گے، وہ دکان میں موجود ہیں۔ آپ ذرا باہر تشریف لائیں گے؟ السلام علیکم جی، غلام عباس صابر صاحب ہیں، ہمارے علاقے کے بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ بہت قومی نوعیت کی شاعری کرتے ہیں، اصلاح و احوال کے لیے ان کی شاعری ہوتی ہے۔ جی، آج کا دن کون سا ہے، آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ آج تاریخ کون سی؟ یکم نومبر۔ کیا یکم نومبر کی کوئی اہمیت ہے ہمارے قوم کے لیے؟ ہمیں وہ 1947 کو وہ یاد دلاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جب ہمیں آزادی جس نے دلائی وہ ہمارے آبا و اجداد بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے ایک خوبصورت سا پیک ہے آج کی خوشی کے موقع پر، اسلام آباد سپر دانا یہ آپ کو پیش کر رہا ہے، اسے قبول کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ جشن آزادی گلگت بلتستان آپ کو مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آئے ناظرین، آگے چلتے ہیں، یہاں کچھ اور دوست موجود ہیں، ان سے بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم، آپ کا پورا نام؟ الیاس صاحب، آپ کا تعلق؟ نگر سے۔ نگر کے کس خوبصورت گاؤں سے آپ کا تعلق؟ ہوپر سے۔ جی، ہوپر میں جو ہے خوبصورت فیسٹیول ہوتا ہے، تو وہ کس ڈیٹ کو ہوتا ہے، کیا آپ کو یاد ہے؟ اگست کسی موسم میں بھی ہو جاتا ہے، تو اس ڈیٹ تو ہے گرمی کے موسم میں، کسی وقت بھی گرمی میں ہو جاتا ہے۔ تو آج کی بار بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو، آج کون سی تاریخ ہے؟ اوپر کی کوئی اہمیت ہے، پتہ اس بارے میں آپ؟ جی، آزادی کا دن ہے، بالکل جی، آپ نے صحیح بتایا الیاس صاحب۔ آج یکم نومبر ہے اور گلگت بلتستان کی آزادی کا دن ہے، اور اس دن کو منانے کے لیے جو اسلام آباد سپر دانا نے ایک خوبصورت سا پیک آپ کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے، اس خوشیوں میں آپ کے برابر شریک ہے اسلام آباد سپر دانا، اس کا یہ گفٹ پیک آپ قبول کریں اور پاکستان زندہ باد کا ایک بھرپور نعرہ لگائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ السلام علیکم جی، آپ کا پورا نام؟ اعجاز حسین۔ اچھا، اعجاز حسین صاحب، آپ کا تعلق؟ استور سے آپ کا تعلق ہے۔ استور کے 3 خوبصورت جگہوں کے نام بتائیں۔ استور میں سے جاتے ہیں قریب پڑتا ہے، اور ڈرامہ ہے اور اردو ہے، وہ جو ہمارے مطلب پریشنگ علاقے یہاں بہت کم ہے، لیکن بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کبھی آئے گا بہت زبردست جی۔ اور آج کے دن کے بارے میں آپ نے کوئی تیاری کی ہوئی تھی کہ آج ہمارے جشن آزادی کا دن ہے؟ ہلکی پھلکی تیاری کی تھی، صبح ہم تھوڑا سا اس حوالے سے یہاں پہ بہت ہم نے چھوٹے بچوں کے ساتھ پارک میں جا کے
बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद जो सुपुर्दाना जो है उसकी तरफ से आपके लिए इस्लामाबाद सुपुर्दाना भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आपका नाम? आतिफ रज़ा। कितने में पढ़ते बेटा आप? 7th में पढ़ते हैं। ज़रा करीब हो जाए ताकि आपकी आवाज़ जी। आज के यकम नवंबर के बारे में घर में कुछ बताया था घर वालों ने? क्या बताया था? अच्छा, क्या तैयारी की? वैसे तैयारी क्या की? अच्छा, खेलकूद की है आपने। बहुत बहुत ज़बरदस्त। आपके साथ इस्लामाबाद सुपुर्दाना आपके साथ है और खुश रहे और इंडिपेंडेंस दिन को मनाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आए नाज़रीन आगे की तरफ। इस वक्त जो है हाजी सारे की जी नाज़रीन, हाजी सारे की टीम इस वक्त सिटी पार्क गिलगित में आई हुई है। आज यकम नवंबर के सिलसिले में यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, उनके वालिदैन साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया इस्लामाबाद सुपुर्दाना ने। तो आइए नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ दोस्तों से यहाँ हम बातचीत करते हैं। करीब आई जाते हैं जी। आपका नाम? वजाहत हुसैन साहब। आपका ताल्लुक? नगर से। नगर के किस गांव से सर? वलियाबाद से। अच्छा, आप जो है गिलगित में क्या कर रहे हैं इस वक्त? भाई है, भाई इधर कारोबार कर रहा है, उसके पास आप बैठे हैं। तो आज कौन सा दिन है, आपको कुछ पता है? इतवार के डेट कौन सा है? डेट 1 तारीख है। 1 तारीख। इस 1 तारीख का कोई ख़ास तारीख है? हमारी ऐसे तारीखी हैसियत है इसका कुछ? इससे उतना पता नहीं है, बस उतना पता नहीं है क्या तारीख है। तो गिलगित की आज़ादी के डेट का आपको पता नहीं है? हाँ, आज़ादी के दिन। तो आज ये बच्चों को आप लाए यहाँ पर आज़ादी के दिन के सिलसिले में लाए कि छुट्टी है कि लाए? आज़ादी के सिलसिले से दिला लाया है। अच्छा, और खुशी के लिए आपने? खुशी के। तो आज आप अपने इस खुशी के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के इस दिन के मौके पे कोई पैगाम आप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस खुशी है, हम गिलगित बल्तिस्तान के। खुश रहिए जी। आपकी इन खुशियों में आपके साथ शरीक है इस्लामाबाद सुपुर्दाना। इसकी तरफ से खूबसूरत सा पैक आपके लिए है, इंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फैमिली यहाँ पर तस्वीरें भी बना रहे हैं। इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ पर तस्वीरें बनाई जा रही हैं और आज के दिन को यादगार बनाने के लिए ये बहुत यहाँ पर एक्साइटिंग में नज़र आ रहा है। बच्चे भी यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आपका नाम? आकिब जावेद साहब। आपका ताल्लुक? अच्छा, तो आज के दिन के बारे में आपको पता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है। उस सिलसिले में आप खुशी मनाने आए कि इतवार का दिन है, छुट्टी है क्या आप? आज दोनों खुशी, एक आज़ादी के लिए और दूसरी यहाँ इंजॉय करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी खुशियों में जो है इस्लामाबाद सुपुर्दाना भी आपके साथ साथ है, इंजॉय कीजिएगा, खूब जश्न। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे यहाँ पर भाई हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका पूरा नाम सर? अशरफ। हाँ जी, अशरफ साहब। आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक प्रॉपर सिटी से कश्मीर से ताल्लुक जी। तो आज के दिन के बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के दिन के बारे में? सबसे पहले तो मैं आज के इस खूबसूरत दिन के मौके पर मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद कर रहा हूँ। ये दिन जो है हमारे असलाफ की कुर्बानियों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। यहाँ से हमारे असलाफ ने डोगरा राज को यहाँ से रंगों से भगा के इस इलाके को आज़ाद कराया था और गैर मशहूर तरीके से पाकिस्तान के साथ व्यवहार किया है, जो इस इलाके की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का एक सबूत है। तो मेरी तरफ मैं जहाँ तक आज का दिन है और ये इतवार का दिन भी है, तो बच्चे एक तो जश्न आज़ादी की खुशी उसके साथ साथ
छुट्टी का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है, इसलिए बच्चों को यहाँ हम घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो आपकी खुशियों में जो है ये इस्लामाबाद सुपुर्दाना भी साथ साथ है, एंजॉय कीजिएगा और इस दिन को मज़ीद यादगार बनाएं। और ये तजदीद ईद का दिन है, हमने सब ने मिलकर जो है एक नए अज़म बलवले के साथ अपने आज़ादी के दिन को मनाना है और अपने मुल्क को मिलत की तामीर के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आए नाज़रीन आगे चलते हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये सदाकत, ये कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हरामोश कौन से गाँव से ताल्लुक़ है? 10 से हरामोश, यानी 10 हरामोश एक दूर अफ्तादा गांव है हमारे गिलगित का, और बहुत कच्ची सड़क है, वहाँ पर आने जाने के लिए काफ़ी दुश्वारी रहती है। और वहाँ पर तालीमी सतह पे जो है वहाँ पर मिडल से आगे क्लासें नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के तलबा जो है वो गिलगित का रुख करते हैं और अपने एजुकेशन को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और बहुत काबिल और ज़हीन बच्चे वहाँ के होते हैं। आज के दिन के बारे में आपको कुछ मालूमात है? 1 नवंबर के बारे में। 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था, डोगरों को हमने यहाँ से बाहर भगाया था। इस बारे में कोई घर में या किसी जगह में आपको इस बारे में कुछ बताया नहीं गया? क्या बताया गया था, ज़रा नाज़रीन सुनना चाहेंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ ना, उससे तो हम बाद में पूछेंगे, आपसे पूछता हूँ। तो चले नाज़रीन, ये देख रहे हैं हमारे बच्चे जो हैं वो आज के दिन को यहाँ मनाने के लिए यहाँ पर जमा है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे सिलेबस में, हमारे दीगर प्रोग्रामों में जो है 1 नवंबर के बारे में इतनी तफसीलात से आगाह नहीं किए गए। इसीलिए हनीसारा टीवी जो है अपने बच्चों को, अपने आने वाले नस्ल को अपने तारीख़ के बारे में, ज़बान के बारे में मालूमात फराहम करते हुए और करता रहेगा। आपके लिए जो है खुशी को दोबाला करने के लिए सुपुर्दाने की तरफ से खूबसूरत सा चाय का पैकेट है, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है हनीसारा टीवी की तरफ से, इसे कबूल कीजिए और मालूमात ज़रूर इकट्ठी करें, क्योंकि यही चीज़ है, आप जितने भी एजुकेशन हासिल करेंगे, IQ और आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा, अपने इलाके के बारे में पता नहीं होगा, तो आप कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आप पूरे नहीं कर सकेंगे। जी आपका नाम? शेर हैदर। अच्छा शेर हैदर, मैंने सुना शेख हैदर, तो मैं बड़ा थोड़ा सा एक्साइट हुआ था। आपका ताल्लुक़ भी 10 हरामोश से, तो आज के दिन के बारे में कोई घर में आपको कुछ बताया गया था? कुछ नहीं बताया गया था, किसी ने भी कुछ नहीं बताया? ये तो बताया है ना। चलिए जी, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान आपके लिए एक खूबसूरत से पैक है इस्लामाबाद सुपुर की तरफ से आपको गिफ्ट किया जाता है। आप इंजॉय करें और मालूमात भी अपने इलाके के बारे में ज़रूर रखें। जी जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम मीर फाजिल शाह। आपका ताल्लुक़? हराम खलतारों से है। बहुत ज़बरदस्त जगह है। खलतारों में जो है हमारे याक बहुत पाए जाते हैं। मुझे कह रहे हैं आप? अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ याक वहाँ पर होते हैं कि नहीं होते? बेपो जिसको कहा जी, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तकरीबन हर घर, हर अफराद के पास तकरीबन 1500। तो अगर आपके वहाँ कोई मेहमान आए तो एक आध बेपो गिफ्ट कर लेते हैं आप? हाँ, कर लेते हैं तकरीबन। अच्छा, तो फिर मैं 15-20 बंदों को भेज रहा हूँ। भेजो भी इंशाल्लाह। तो अच्छा, आज के दिन के बारे में क्या आप मालूमात कुछ रखिए? ये आज के दिन हमारे लिए पार्टी के लिए, बल्तिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 1 नवंबर जो है हमारा आज़ादी का दिन है, तो इसलिए हम आज इतवार भी था, हमने कहा थोड़ा असर तकलीफ कर लेते हैं, इसलिए हमने सिटी पार्क की तरफ। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं उनके नाम शाम भी आपको याद हैं? उनमें से 2-3 के नाम आप बताना पसंद करेंगे जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद करा के जो है वो? इनमें से अपना इलाके का ही एक मुजाहिद बख्तवर शाह, और दूसरे का नाम बाबर खान है, और अपना कर्नल हसन, और ये तीनों का नाम याद है। बिल्कुल जी, मुजाहिद बख्तवर शाह ने अकेले जो है सिख रेजिमेंट के 20 अरकान को तनो तनहा जो है वो उनको हथियार डालने पे मजबूर किया और उनको गिरफ़्तार करके लाके पूंजी से गिलगित में लाके उनको हवाले किया था, जो एक रिकॉर्ड है जो आज तक जंगी तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। आपके लिए जो एक खूबसूरत सा गिफ्ट पैक है सुपुर्दाने की तरफ से, इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से है ये, और उनका पैगाम है कि जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान आप सबको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी जी। नाज़रीन आगे चलते हैं, आए देखते हैं बाकी हमारे दोस्त जो हैं जश्न आज़ादी के बारे में किस किस्म के ख़यालात और किस किस्म की मालूमात रखते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये सिटी पार्क जो गिलगित का वाहिद तफरीगाह है, यहाँ पर लोग आकर अपने तस्वीरें बनाते हैं, यहाँ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। हम भी चाहेंगे कि इनसे कुछ गपशप लगाएं और देखते हैं कि हमारे भाई क्या कुछ है। जी आपका पूरा नाम? अली खान साहब। आपका ताल्लुक़?
अली खान काशिफ आपका ताल्लुक तंबूदास गाने जो अच्छा थ्वार के आप हैं, तो आज के दिन के बारे में आपके पास कुछ मालूमात है? मैच खेलते हैं। अच्छा आज जो है खुश रहते हैं, उसकी वो जो गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन ये नहीं है? अच्छा तो इस दिन को आप किस तरह मना रहे हैं? खुशी से मनाते हैं या आज के दिन के मौके पे हमारे दोस्तों को कोई पैगाम देना पसंद करेंगे आप? सर। क्यों नहीं सर, क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह आने वाला सामने नहीं कोई पैगाम की बात करता हूँ कि प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर हम उनके साथ मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारे अली खान काशिफ साहब हमारे गुलकार भी हुआ करते, वो इस वक्त युगंडे में हैं, अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमें खुशी है कि आज के दिन के मौके पर एक और अली खान काशिफ हमारे साथ जो है बैठे हैं, हमें जो है उस कमी को महसूस होने नहीं दे रहे हैं। और इस खुशी को दोबाला करने के लिए इस्लामाबाद शुक्रदाने की तरफ से खूबसूरत सा पैक आपकी नज़र है, आप आपके दोस्त जो है इसे इंजॉय करें, इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा ज़र्रार यहाँ पर बंठन के आया हुआ है और बहुत मुस्कुरा रहा भी है। तो आपका ताल्लुक किस गांव से है, किस शहर से है, किस सिटी से? आपका भी हरामोश से। हरामोश की जगह के बेटा सच से हरामोश यानी कि बाजार एरिया की आप। तो आप कितने में पढ़ते बेटा? चौथी क्लास में। आज के दिन के बारे में कुछ बताया बड़ू ने आपको? क्या बताया? छुट्टी है जाओ खेलो का है, फिर क्या बताया? खेलना था। तो आज जो है गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है, इस बारे में कोई बुजुर्गों ने भाइयों ने कुछ बताया था आपको? कुछ भी नहीं बताया था। तो बस अभी जाकर आपने उनसे पूछना है कि आज के दिन हमारे बुजुर्गों ने किस तरह गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया था। आपके लिए इस्लामाबाद शुक्रदाने की तरफ से खूबसूरत सा ज़रा आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आए नाज़रीन आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? अली अब्बास। कहाँ से ताल्लुक़ है बेटा आपका? मेहरबानपुरा से, मुगलपुरा से, मेहरबानपुरा से। अच्छा कितने जमात में पढ़ते हैं आप? 6 में। तो आज के दिन के बारे में कुछ पता है आपको? क्या पता है? आज छुट्टी है। इसके अलावा यकूम नवंबर के बारे में कुछ भाइयों ने नहीं बताया हुआ, बड़ों ने कुछ भी नहीं बताया। क्या बताया? हाँ क्या बताया? जैसे बता दो, हम सुनना चाहेंगे। हाँ आज यकूम नवंबर है और जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान है। आपके लिए इस खुशी में इस्लामाबाद शुक्रदाने की तरफ से एक खूबसूरत से चाय का पैकेट है, इसे ले जाए और खुद भी पिए और घर वालों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। नाज़रीन आए आगे चलते हैं और लोगों से। जी नाज़रीन देख रहे हैं कि बच्चा जो है यहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा है, इससे हम पूछेंगे, कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आपका पूरा नाम? अली अयाज हमारे साथ है यहाँ पर। बेटा आपका नाम? अली अयाज। आपके मोहल्ले का नाम? मेहरबानपुरा से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज इतवार का दिन था, आप खेलने कूदने के लिए तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा आज इतवार के दिन यकूम नवंबर के बारे में कुछ भाइयों ने कुछ बताया था कि आज कोई बड़ा दिन है? किसी ने कुछ भी नहीं बताया, घर में कोई तैयारी भी नहीं किया, सिर्फ खेलने के लिए बात की आप इधर आए। आज यकूम नवंबर का दिन है, जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान है। आपको और पूरी कौम को हनीसारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद शुक्रदाने की तरफ से मुबारक हो, और उनकी तरफ से खूबसूरत सी चाय का पैकेट है जो आपके बहुत खुशी। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? सकलेन अब्बास हमारे साथ यहाँ पर है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? आपका ताल्लुक़ भी हराम मुसस्सी से। तो आप हमें आज़ादी के 3 हीरोज़ के नाम बताना पसंद करेंगे? चलिए जी, आपने 2 के नाम बता दिए हैं। बाबर ख़ान है, सफ़ीउल्लाह बेग है, ब्रिगेडियर रिटायर शाह खान साहब हैं जो इस वक्त ज़िंदा मुजाहिद हैं, जो इस वक्त हयात है। इस्लामाबाद शुक्रदाने की तरफ से एक खूबसूरत सा चाय का पैकेट है जो आपकी नज़र है, वो आपकी खुशियों में बराबर के शरीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आपका नाम? असदुल्लाह हमारे साथ खड़े हैं। आपका ताल्लुक़? अस्तौर। किस खूबसूरत गांव से है? चोरी नंगा बिल्कुल नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने है और खूबसूरत वादी है, परियों के का मस्कन जिसे कहा जाता है, उस गांव से इनका ताल्लुक़ है। और आज यकूम नवंबर है, इस बारे में कोई मालूमात है आपके पास? क्या मालूम?
1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था। हमारे आबा अजदाद ने डंडों कुल्हाड़ियों से डोगरा राज का यहाँ से ख़त्मा करके ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ हम इसका इल्हाक किया था और आज हम उसी खुशी को, उसी जश्न को मनाते हैं। आपकी खुशियों में और हमारी खुशियों में, पूरे कौम की खुशियों में इस्लामाबाद सुपुर्दाना साथ साथ है। उनकी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं और देखते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम खोमर चौक के पास मौजूद है। यहाँ पर कुछ दोस्त हमारे यहाँ बैठे हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनके पास कैसी मालूमात है। अस्सलाम वालेकुम। करीब आ जाइए। जी आपका नाम? सुहेल अब्बास हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। जी आपका नाम? एयरपोर्ट खोमर से इनका ताल्लुक़ है, सुहेल अब्बास का। आज के दिन के बारे में कोई मालूमात आपके पास है? 1 नवंबर के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया कि आज हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी का दिन है। 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था। मालूमात नहीं थी आपके पास, तो मालूमात मिल गई कि आज जो है गिलगित बल्तिस्तान के आज़ादी का दिन है। तो आपको खुशी महसूस हो रही है आज़ादी से? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कम हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी के मौके में जो है शुक्रदाना आपके साथ है। इस खुशी में हमारी तरफ से और शुक्रदाने की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी शुक्रिया। जी आपका नाम? को जश्न आज़ादी मुबारक हो रही है। शुक्रदाने की तरफ से ओके। जी नाज़रीन, इस वक्त खोमर में मैं यहाँ एक कारखाने में हूँ। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, इससे हम पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका पूरा नाम? ज़ीशान अब्बास हमारे साथ खड़े हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज कौन सा दिन है? एतवार का दिन है और छुट्टी का दिन है। डेट कौन सी है? तारीख कौन सी है? 1 और महीना कौन सा है? नवंबर का। 1 नवंबर। 1 नवंबर का नाम जब जहन में आता है तो कोई बात आपको वाज़ेह होती है। घर वालों ने बताया कि 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ था? 1 नवंबर 1947 को क्या हुआ था? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था। देखा नाजरीन कि हमारे इस भाई को पता था, लेकिन याद नहीं था कि आज का दिन जो है गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है। आज़ादी के इस मौके पर जो है शुक्रदाने की तरफ से खूबसूरत से चाय का पैकेट आपकी नज़र है। इसे पिए और खूब जश्न मनाएं। आपको इस्लामाबाद टी की तरफ से और हनी सारा टीवी की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। आए नाजरीन आगे चलते हैं। यहाँ पर एक मैकेनिक मेरे ख्याल में खड़ा है, उसकी तरफ हम जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या ख्यालात रखते हैं। जी भाई, आपका नाम? हाजत अली। हाजत अली साहब, आपका ताल्लुक? नगर की जगह से पिसन के हैं, नगर पिसन से इनका ताल्लुक है। और यहाँ पर ये कारखाना आप चला रहे हैं? अच्छा, आप क्या काम करते हैं? यही कटिंग वगैरह करते हैं? कभी गुबार कोई आ जाए कि भाई हमारे लिए दरवाज़ा ये मुफ्त बनाओ का, तो आप बना के भी कभी किसी को देते हैं? कोई कितने बंदों को आपने अभी तक दिया? अभी तक तो नहीं दिया है। तो बस मेरे लिए एक मुफ्त आपने बनाना है, क्योंकि आपने कहा है देते हैं, तो बस अभी मेरे लिए तो एक बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, 1 नवंबर के बारे में कोई मालूमात आपके पास है? 1 नवंबर 1947 को हमारे आबा अजदाद ने क्या किया? इस धरती को आज़ाद किया था। वेरी गुड। देखा नाजरीन की हमारे भाई ने, उनके पास मालूमात मौजूद है। आज के दिन गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था। 1 नवंबर का दिन गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में अहमियत का हामिल है। और इस मौके पर जो है हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से आपको और आपके घर वालों को सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और उनकी तरफ से खूबसूरत का चाय का पैकेट है और खूब इंजॉय कीजिएगा, मज़े लीजिएगा आज के दिन का। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आइए आगे चलते हैं और हम और लोगों से भी कुछ गपशप लगाते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम चुटियाल बस स्टैंड पे हैं। यहाँ पर हमारे बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम मालूमात इकट्ठी करते हैं और इनको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। आइए नाज़रीन। जी आपका नाम? वसीम आलम साहब, आपका ताल्लुक़? आपका ताल्लुक़ चिलास से है, डिस्ट्रिक्ट ग्यामर से है। ज़रा पूछिए आवाज़ में। तो आप जो है आज के दिन के बारे में जानते हैं, आज कौन सा दिन है? आज ही संडे है जी। और आज
जो नंबर है जश्न आज़ादी जी इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे कि जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में सर ये बिल्कुल मैं बता सकता हूँ कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो बैड एरिया था इधर रियासत के डोगरा जहाँ गुलबर्ग जाते थे लगा पड़ता था खुद अपने मदद आप लोग इस इलाके को आज़ाद करवाया है और जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारी तरफ से हनीसारा टीवी की तरफ से और शुक्र इस्लामाबाद शुक्र दाने की तरफ से आपको जश्न आज़ादी आपको और पूरी कौम को मुबारक हो। उनकी तरफ से खूबसूरत सा टीवी का डब्बा है, एंजॉय कीजिएगा और खूब जश्न मनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब आपका नाम? अली रज़ा साहब हमारे साथ हैं। आपका ताल्लुक सतवार से अली रज़ा साहब का ताल्लुक है। आज के दिन के बारे में कोई मालूमात है आपके पास? ओके जी एक मिनट जी नाज़रीन हमारे कुछ दोस्त यहाँ यादगार शोदा पे बैठे हैं, इनसे हम कुछ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है नज़ीर भाई आपके? ठीक ठाक है और मज़े के साथ हैं। 9 नवंबर 1947 को क्या हुआ? जी बिल्कुल जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की हमारी तरफ से हनीसारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद चाय की तरफ से आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जनाब नेक आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर ये बहुत अच्छी ड्यूटी भी दे रहे हैं, सरकारी मुलाजिम भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये हाल ही में बैरून मुल्क जाकर तरबियत हासिल करके आए हैं और अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे 1 नवंबर के जो है जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान का आज़ादी का दिन है, इस दिन के मौके पर आप हमारे कौम को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? बस भाईचारे से रहे, अमन से रहे, वारियत अपने पास करीब न लाए, यही बेहतर होगा हमारे लिए, सबसे बेहतर काम। बिल्कुल जो है फिरकावारियत जो है हमारे लिए ज़हर कातिल है। आपने बहुत अच्छी बात की। प्यार मोहब्बत और अमन और फिरकावारियत का खात्मा अगर इस इलाके में होगा तो हम तरक्की की राहें जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से इस्लामाबाद शुक्र दाने की तरफ से खूबसूरत सा चाय का पैकेट है, खूब इंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे बाकी दोस्त यहाँ पर क्या जनाब अली मोहतरम कैसे मिजाज है सर? आपका पूरा नाम सर? मीर ज़फ़र साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आज के दिन के बारे में जो जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान का दिन है और कौम जो है जश्न आज़ादी मना रही है, इस मौके पे हमारे कौम के लिए आप क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? हमारे शिद्दत के हवाले से मौजूदा हालात को साबित करते हैं कि जहाँ इत्तेफाक हो, इत्तेहाद होना चाहिए, हमारे दरमियान अमन होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। बिल्कुल भाईचारा अमन ही हमारी तरक्की का राज मुज़मिर है और अगर हम अमन भाईचारे से रहेंगे तो हमारा इलाका तरक्की करेगा। हमारी तरफ से हनीसारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद शुक्र दाने की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक और उनकी तरफ से खूबसूरत सा चाय का पैकेट है, इंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी आपका पूरा नाम? अजीज़ुर रहमान साहब। आपका ताल्लुक गिलगित से आपका ताल्लुक है और आज के दिन के बारे में आप कितने अवेयर हैं? 3 एक हमारे आज़ादी की हीरोज़ के नाम बताना पसंद करेंगे आप? जी बिल्कुल कर्नल मिर्ज़ा हसन खान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह खान और बाबर खान, सफीउल्लाह बेग, इस तरह हमारे बहुत से हीरोज़ हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया है। आपके लिए भी एक खूबसूरत सा चाय का पैकेट है, तो आप इंजॉय कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हाजी लाल मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। आपकी एज कितनी होगी तकरीबन? 60 साल होगी और हमारे गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद हुए 64 साल तकरीबन हो रहे हैं। तो आप हमें ये बताना चाहेंगे जब आपने होश संभाला तो गिलगित बल्तिस्तान में जो एक माहौल था और उस दौर के माहौल में उस वक्त तरक्की ज़्यादा थी, अभी तरक्की ज़्यादा है क्या? अभी आसानियाँ ज़्यादा हो चुकी है, मशीनी दौर आ चुका है, रोड आसान सहूलियात हो चुकी है, ठीक है ना? तो आज़ादी के दिन के मौके पे आप हमारे नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम इनको ये कहते हैं कि अमन करने चले, अमन करें, ठीक है कि नहीं, और भाई के साथ मिल जाए, बड़े छोटों के साथ ताल्लुक अच्छे रखें, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल अमन भाईचारे का दर्स देते हैं हमारे बुजुर्ग और हमें इसको अपने पल्लू से बांध कर रखने चाहिए, अपने इसके रस्सी को मजबूती से, इत्तेहाद की रस्सी को मजबूती से थाम के रहना चाहिए ताकि कोई
दूसरा जो है हमारे दरमियान में दरार न डाल सके। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है ताकि हम आगे बढ़ें और तरक्की करें और जो हमसे माजी में गलतियाँ हो गई हैं उनको दोबारा न दोहराएं। आपके लिए इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से खूबसूरत सा चाय है, यूज़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आपका पूरा नाम ही शौकत अली है। क्या काम करते हैं सर आप? गवर्नमेंट मुलाजिम है। तो जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के इस खूबसूरत मौके पर आप कोई पैगाम कौम को देना चाहेंगे? बिल्कुल अमन में ही हमारी तरक्की का राज मौजूद है। आपके लिए खूबसूरत सा इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से चाय का पैकेट है, चाय इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज़ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सब वार से है। जश्न आज़ादी के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? आज़ादी की नियामत जो हमें आज नसीब हुई है उन हीरोज़ को क्या कहना? आज़ादी तो अच्छी होता है आज़ादी। जी बिल्कुल, आज़ादी नियामत है और इस नियामत का उनको पता है जो इस वक्त गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से खूबसूरत सच्चाई है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका ताल्लुक अस्तोर से? जी आप ये आज़ादी के बारे में जो आज मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान सबको आज़ादी मुबारक कहूँगा और पाकिस्तान को सलाम करूँगा और हमारे जो शहीद हैं, नौजवान हैं, उन सबको सलाम करूँगा। उनकी बदौलत आज हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं और सुकून से बैठे हुए। वो बॉर्डरों में हमारे लिए ये बर्फबारी एक सख्त मौसम में वो हमारे लिए हिफाजत के दीवार बने हुए हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आज़ादी की कदर करें और कश्मीर वालों से जाकर पूछें आज़ादी क्या होती है। बिल्कुल जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि पाक फ़ौज को इस मौके पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जो इस ठंड में गर्मी में बुलंदी पर बैठ कर जो है अपने हमारे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और हम आज़ादी से सुकून से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके लिए इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश। आए नाज़रीन, आगे चलते हैं। जी हम इस वक्त लालिक जान शहीद स्टेडियम जुटियाल में मौजूद है। यहाँ पर कुछ नौजवान खेल कूद में मसरूफ़ हैं, कुछ फारिग बैठे हुए हैं। उस तरफ हम जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज के दिन के बारे में उनके पास कैसी बात आए ना। जी भाई, आपका नाम? परवेज़ अली। परवेज़ अली इनका नाम है। कहाँ से ताल्लुक़ है सर आपका? गोजाल से ताल्लुक़ है। आज कौन सा दिन है? तो गिलगित बल्तिस्तान 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, तो आपको मालूमात नहीं थी? किस चीज़ के बारे में? जश्न आज़ादी के बारे में कुछ पता नहीं है? हाँ, किसी ने नहीं बताया आपको? चलिए फिर भी हम आपको जो है इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से खूबसूरत सा टी बैग देते हैं। आइंदे से याद रखें कि 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज़। खड़े हो जाओ। जी आपका नाम? आपका नाम खलील है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चिलास। किस जगह से ताल्लुक़ है? खिनर से आपका ताल्लुक़ है। बहुत खूबसूरत नाला है नाज़रीन। वहाँ पर जो है मछलियाँ भी, ट्रॉट फिश वगैरह भी पाई जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त इलाका है हमारे गिलगित बल्तिस्तान का। अच्छा, आप जश्न आज़ादी के बारे में किस किस्म की मालूमात रखते हैं? यहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज़ थे जिन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद किया। उनके नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक बेटा तनियोर में और 2 का तो चले, आपको रिहाइश का तो पता है। आइंदा याद रखें कि कर्नल मिर्ज़ा हसन खान और बाबर खान और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड शाह खान, इन तीनों ने मिलकर इनकी क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ। 1 नवंबर 1947 को हम आज़ादी के जैसी नियामत से अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इल्हाक किया गया। आपके लिए इस्लामाबाद सुपर दाने की तरफ से एक खूबसूरत सा पैक है, इसे लीजिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ यहाँ पर हमारे दोस्त हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ज़रा इस तरफ हो जाए। जी हाँ, आपका पूरा नाम? झंडा मलिक। झंडा मलिक। आखिर आपका नाम झंडा मलिक क्यों रखा गया? मेरे चाचा ने रखा। उनके पास और कोई नाम नहीं था? नहीं था। अच्छा, आप खुश हैं इस नाम से? सही खुश। अच्छा, नाम नहीं पाकिस्तान में मशहूर हो चुका है आपका। जी अच्छा, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आज के दिन की मुनासबत से कौम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं?
जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। हमारी तरफ से, हनी सारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से खूबसूरत सा पैक आपकी नज़र है, इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं, हमारे यहाँ कुछ दोस्त बैठे हैं। जी आपका नाम? याकूब आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। जी आप क्या काम करते हैं? फारिग बैठे हुए हैं, मजदूरी वगैरह भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं हैं। अच्छा, आप कुछ भी नहीं करते, तो आज के दिन यहाँ क्या करने आए हैं? फुटबॉल खेलने के लिए। 1 नवंबर 1947 को एक वाक़या पेश आया था गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बारे में आपको कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं है। वैसे ही मुफ्त में आपको आज़ादी मिल गई ना, इसीलिए आपको पता नहीं है। आज का दिन जो है हमारी आज़ादी का दिन है गिलगित बल्तिस्तान का। हमारी तरफ से, हनी सारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये खूबसूरत सा पैक आपकी नज़र है, इसे कबूल कीजिएगा और चाय बनाया हो, खूब पियो, मज़े करो यार। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? इस सब करीब आ गए। हाँ जी, शेर नादिर चिलासी साहब हमारे साथ खड़े हैं, कद में माशाल्लाह ज़बरदस्त फिट है। जी आप पढ़ते हैं कि क्या करते हैं? कितने जमात में पढ़ते हैं आप? सेकंड ईयर में ये पढ़ रहे हैं। किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट? वहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के मुतलिक, इलाके की पहाड़ों के मुतलिक, सेहत के मुतलिक कुछ पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है, असेंबली बताया जाता है। तो अगर मैं कोई सवाल करना चाहूँ तो आप जवाब देना पसंद करेंगे? जी हमारे कौमी जानवर, पाकिस्तान का कौमी जानवर का नाम बताएं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया हमारी इस दोस्त ने। मारखोर की कितनी किस्में? चले फिर भी हमारी तरफ से, हनी सारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़रा करीब आइए। जी आपका नाम? शाकिर सुपारी। वाह जी, सुपारी, शाकिर सुपारी साहब। तो आपने ये पसंद से रखा है कि लोगों ने नफ़रत से आपका नाम सुपारी से पसंद से रखा है? आपने शौक़ से रखा है? जी जी। तो आप पढ़ रहे हैं कि सुपारियाँ ही ले रहे हैं? अच्छा, पढ़ रहे हैं। कितने जमात में पढ़ते? 9th में आप पढ़ते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के मुतलिक आपको मालूमात हैं कि मैं कोई क्वेश्चन करूँ, सवाल करूँ कि इसी तरह आपको मुबारकबाद पे कर जाऊँ? सवाल करूँगा तो आप मुझे ये बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत से 3 झीलों के नाम बताएं। झील, लेक्स। नंगा पर्वत, झील, झील के नाम, झील के नाम। वेरी गुड, वेरी गुड। गाशो पोर्ट झील, बिल्कुल उसका नाम गाशो पोर्ट झील है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो हम लोग कोई नाम रखेंगे ना। आप लोग वहाँ रास्ता बराबर करें, हम जाएंगे, हम नाम रखेंगे उसका। आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। आपको हनी सारा टीवी की तरफ से, इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से, हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और ये खूबसूरत से चाय वो जोश दिला के पीने आपने, खुशबू ले लें, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन यहाँ चलते हैं, हमारे भाई मुस्कुरा के देख रहे हैं, हम इनके पास जाएंगे। जी आपका नाम? वकास अहमद हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। जी आप पढ़ते हैं कि कुछ कर रहे हैं? दे रहे हैं जी। तो अच्छा, आप मुझे बताना चाहेंगे कि जश्न आज़ादी के बारे में जो है आपको अपनी फैमिली की तरफ से अवेयर किया गया, स्कूल में अवेयर किया गया कि मुख्तलिफ तकरीबात देख कर आपको पता चला? वाला इंटरेस्ट है इस बारे में मालूमात किसने आपको दी? टीचर्स ने दी है, वालिदैन ने दी? जी बिल्कुल, हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारे बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे जो हैं, जश्न आज़ादी की जब दिन आता है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो सख्त हालात ज़रूर देखा है जो हम नहीं देखे। हमें ऐसे ही मुफ्त में एक आज़ादी मिली है। हम पे फ़र्ज़ है कि हम इस दिन को खुशी से मनाएं और तजदीद अहद करें कि हम अपने पूरी सलाहियतें अपने मुल्क को कौम के लिए बरोए कार लाएंगे। इस्लामाबाद टी की तरफ से, इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सच्चाई का पैकेट है, इसे पिए। और हमारी तरफ से, हनी सारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हाई काम में पढ़ रहे हैं। तो आज का दिन कौन सा है? ये दिन आप कैलेंडर में क्या बता रहे हैं? जी इस मौके पर जो है नौजवानों को कोई पैगाम देना आप चाहेंगे?
जी बिल्कुल, हमारे तलबा जो हैं वो जी लगा कर जो है वो तालीम हासिल करें और अपनी सलाहियतें जो इसी फील्ड में जिस काम के लिए वालिदैन उनको भेजते हैं स्कूल, उसी पे लगाएं और दीगर मसरूफियात जो हैं वो तर्क कर लें जैसे कि आजकल के नौजवान करते हैं। आपका पैगाम बहुत जीवनीय है और बहुत ही उसमें अगर अमल किया जाए तो हमारे तलबा ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी तरफ से, हनी सारा TV की तरफ से, इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से खूबसूरत सा तोहफा आपकी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आए नाजरीन आगे चलते हैं, देखते हैं कि बाकी नौजवान क्या कुछ कर रहे हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम शहीद लालिक जान स्टेडियम जुटियाल में मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए इन खिलाड़ियों से पूछते हैं जो अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वो आज के दिन के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका पूरा नाम? सदाकतुद्दीन आपका नाम है। आप क्या काम करते हैं? खेलते हैं, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कितने ज़माने पढ़ते हैं? सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। तो अच्छा, आप सारे दिन तो ग्राउंड में होते हैं, पढ़ते किस वक्त? नहीं, आज अतवार इसलिए बाकी दिनों में क्या करते हैं? किस टाइम पढ़ते हैं? इस टाइम इंशाल्लाह बच्चे छुट्टी के दिन यहाँ पे करते हैं इंशाल्लाह, यानी अल्लाह ने चाहा तो आप पढ़ते हैं वरना नहीं। पढ़ते हैं अच्छा, छुट्टी के दिन यहाँ करते हैं, बाकी पढ़ाई में लगाते हैं। तो आज तारीख आज तारीख हाँ यकूम को आप यहाँ किसी डेरे में कोई मकान किराए पे लिया हो, जब मालिक मकान ने आके किराए का मुतालबा किया तो तब आपको पता चला आज यकूम नहीं अच्छा, ज़ाती वैसे पहले ही आपको पता था कि आज यकूम नंबर है। तो यकूम नंबर को क्या हुआ? बिल्कुल, आपने दुरुस्त जवाब दिया। आपका दुरुस्त जवाब देने पर इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से खूबसूरत से चाय का पैकेट है, खूब उबाल कर मज़े ले लेकर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? नूरुद्दीन साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अस्तौर से आपका ताल्लुक़ है। अस्तौर के किस खूबसूरत इलाके से आपका ताल्लुक़ है? डोइया से आपका ताल्लुक़ है। जब हम डोइया से गुजरते हैं तो बड़ी हमें तकलीफ़ होती है। जगह जगह आप लोगों ने सड़क पे खुदाइयाँ करके जो गड्ढे बनाए हैं ना, तो उसका आज जवाब देंगे पूरा। अच्छा, ये जो सड़कें होती हैं ये किस लिए होती हैं? गाड़ी चलाने के लिए होती है ना, लेकिन उन पर खड़ा क्यों बनाया जाता है? लोग बना लेते हैं। तो आज के दिन के बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, बच्चों के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? कुछ भी नहीं देंगे, खेलो कूदो और जान बना। तो नाजरीन, हमारे ये भाई जो है अस्तौर से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से खूबसूरत से चाय का पैकेट मज़े लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे बाकी दोस्त क्या पूछते। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? रहीम जान, कहाँ से ताल्लुक़ है बेटा आपका? यासीन से आपका ताल्लुक़ है। यासीन के किस गाँव से आपका ताल्लुक़ है? बरकोल्ती से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कि आज डेट कौन सा है? हाँ, ये यकूम नवंबर जो है, इसका कोई अहमियत है हमारे इलाके में? बिल्कुल, यकूम नवंबर जो है गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन है। इस मौके पे नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहिए? बस ये पैगाम यही होगा कि मेहनत करें, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और पाकिस्तान की तरफ काम करें। तमाम लीडर से यही उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। बहुत ज़बरदस्त आपने न सिर्फ नौजवानों को बल्कि सूबाई हुकूमत को भी मशवरा दिया कि वो अपनी ईमानदारी के साथ काम करें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हनी सारा TV की तरफ से इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से खूबसूरत से चाय का पैकेट आपकी नज़र है, चाय बनाए और खूब जी भर के बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। चले जी, आपका नाम बेटा? वजाहतुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अस्तौर से आपका ताल्लुक़ है। अस्तौर के किस गाँव से? लोस से इनका ताल्लुक़ है। महबूब साहब जो हमारे साबिका MNA हैं, उन्हीं के गाँव से आपका ताल्लुक़ है। आज के दिन के बारे में कोई मालूमात है आपके पास कि यकूम नवंबर को क्या हुआ था? बिल्कुल, इस मौके पे कोई नौजवानों को कोई पैगाम, कोई अपनी तरफ से कोई फिक्रा कहना चाहेंगे नौजवानों के लिए? हाँ ना, वो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं। तो आप जो है नौजवान यूथ हैं, आपके पास एक सोच होनी चाहिए कि आप आगे जाके क्या करना चाहेंगे, अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहेंगे।
اس میں یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کتنے میں پڑھ رہے ہیں؟ میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، تو آگے جا کے آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر بننا چاہیں گے؟ کس نے کہا تھا سر نے نا؟ آپ کا ذاتی فیصلہ تو نہیں ہے نا؟ کبھی مچھر شچھر کا آپریشن کیا آپ نے؟ تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کس نے کہا؟ یہ تو آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوا نا، آپ کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ دیکھو کہ آپ کی دلچسپی کس فیلڈ میں وہ بننے کی آپ کوشش کریں۔ ہماری طرف سے، ہنی سارا ٹی وی کی طرف سے اور اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے سب پہ آپ کے لیے چائے بنائیں اور مزے کر لیں اور فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا بنایا۔ آئے ناظرین، یہ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے ہم ملیں گے سامنے۔ یہ آپ کا نام؟ اظہار اللہ صاحب بڑے خوش شکل ہیں، اچھے مزایا گفتگو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں ڈی ای سیول ڈپلوما۔ اچھا، آپ انجینئر ہیں جی، ایجوکیشن میں آپ نے جو کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس وقت کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ڈپلوما آپ کے پاس موجود ہے؟ میں موجودہ ٹائم پہ ٹریننگ کروا رہا ہوں۔ کہاں پہ؟ کس چیز کی ٹریننگ کرا رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہوتے ہیں یہاں کام مطلب آپ گورنمنٹ سروینٹ ہیں؟ بالکل ایسا۔ اچھا، گورنمنٹ ہمارے پاس فور ٹریڈ جو ہوتے ہیں نا، جی جی، جس میں ہم اس میں ہمارے پاس چار ٹریڈ چلتے ہیں: ویلڈنگ، پائپ فٹنگ، ووڈ ورک اور یہ الیکٹریشن۔ بہت زبردست ہے۔ ہمارے یہ بھائی جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہماری قوم جو ہے وہ تربیت یافتہ ہنرمند بن کر اگر سامنے آئے گی تو ہمارے علاقے میں، ملک میں جو ہے ہنرمند لوگوں کی بے حد کمی ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ کر رہے ہیں، جس سے ہماری قوم کی تعمیر ہوگی اور آئندہ سال بہ سال ہمارے ملک خود کفالت کی طرف گامزن ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ آپ کے لیے جو ہے اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے یہ چائے کا تحفہ ہے، ہماری طرف سے اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے جشن مبارک۔ بہت بہت شکریہ آپ کو بہت مبارک۔ جی بیٹا، آپ کا ذوالقرنین، ہاں ذوالقرنین، آپ جا رہے ہیں آج کل؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کس گاؤں سے؟ دویا سے آپ کا بھی تعلق ہے۔ آپ آج کے دن کے بارے میں گھر میں آپ کو بتایا گیا تھا، اسکول میں بتایا گیا تھا کہ آپ نے تقریبات یا اخبارات میں پڑھ کے آپ کو معلومات حاصل ہوئی کہ آج کے دن ہمارے آزادی کا دن ہے، لیکن بتایا کس نے تھا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ پہلے سے تھی، کس طرح معلومات تھی؟ کتابوں سے پڑھا تھا، والدین نے نہیں بتایا؟ اچھا، کہ آج کے دن ہمارا یہ آزادی کا دن ہے، تو آج کے دن آپ ہمارے بچوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ ذوالقرنین، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہے اسلام آباد سپر دانے کی طرف سے۔ سر آپ کو چائے پلاتے ہیں؟ چائے تو میرے پاس بہت ہے کچھ۔ جی ناظرین، یہاں پر ہمارے لوگ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آج کے دن کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ کل آپ کا پورا نام؟ ادینہ شاہ، آپ یقیناً آرمی سے ریٹائرڈ ہیں؟ ڈسپنسر ریٹائرڈ ہے۔ اچھا، یکم سینٹر گروپ سے آپ کا تعلق ہے۔ یکم نومبر کے بارے میں ہمارے نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یکم نومبر ہمارے ایریا کے آزادی کا دن ہے، تو اس سے ہم خوش ہیں، اور ہم ان جوانوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे एक दोस्त बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मेहताबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज के दिन के बारे में आपके पास क्या मालूम है? नवंबर के बारे में जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान है जी, ये इस मौके पे आप कौम को क्या कहना चाहेंगे? खुशामद की मुबारक नहीं कहेंगे? बिल्कुल जी, हमारी तरफ से सुपुरदाने की तरफ से इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से खूबसूरत चाय बनाए और मजे की, ये आपके लिए ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। आए नाज़रीन आगे चलते हैं, देखते हैं कि बाकी दोस्त क्या सोचते हैं। जी, आपका नाम? फिदाउल्ला। आप पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ। कितनी जमात में? फर्स्ट ईयर में। प्री इंजीनियर में आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो कैरियर आपको अडॉप्ट करना पड़ा प्री इंजीनियर में जाके इंजीनियर बन गया, तो ये घर वालों के साथ की तरफ से दबाव था, टीचर्स ने बताया? मौजूद है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो है वो पढ़ रहे हैं कि कोई जॉब अच्छा पढ़ रहे हैं? जी जी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे बहुत से ऐसे लोग जो है वो कैमरे के आगे तकरीबन अभी तक 70 से ज़्यादा लोगों ने आगे अपने व्यूज़ दिए। यहाँ पर आप क्यों घबरा रहे थे कैमरे के? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बाकी बंदूक। अच्छा जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये आगे जाकर जो है अपने फील्ड में कोई नाम कमा सकते हैं? मुश्किल है, इसी तरह अगर ये लगे हुए हैं तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़। तो आज कौन सा दिन? आज तो संडे है। डेट आइए जुटियाल में रहते हैं? जी जी। किराए के मकान में? अपना मकान। अपना। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब कैलेंडर में आपको बताया कि आज यकम नवंबर। नहीं, स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई मैंने किया है वो दिन कौन सा। अच्छा, आज के दिन के बारे में आप क्या बताएंगे? बस और क्या बोल सकते हैं भाई, छुट्टी का मज़ा। चलो जी, जाओ जी, ऐसे करो। ये थैंक यू क्या मतलब, मैं आपसे आगे बातें करना चाहता हूँ। तो आज के दिन के बारे में ये था कि आज इतवार का दिन है, यकम है, नया महीना स्टार्ट हो चुका है। 1 महीना 1.5 महीने के बाद हैप्पी न्यू ईयर आएगा और हम मज़े से आप छूटेंगे। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आज यकम नवंबर जश्न आज़ादी के दिन है। वो मालूम था आपको? तो आपने किस तरह बनाया, आज का सुबह का आगाज़ किस तरह किया?
सुबह सबसे पहले मैं उठा, उसके बाद चाय पी, नाश्ता किया, उसके बाद बैठा, खुशी किस तरह मनाई? वैसे अब यहाँ बना के दिखाई कोई अभी कोई ना म्यूजिक है ना वो ये बनाए चुन के आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो यानी कि आपको बेहद खुशी। तो इस मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को कि वो आज के दिन क्या अहद करें, क्योंकि आज़ादी का दिन तो तजदीद अहद करेंगे। मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि तफरकाबाजी, फ़िरका परस्ती से निकलें और अपने इलाके के लिए कोई ऐसा काम करें, नाम कमा जाएँ कि बंदे 100 साल के बाद भी आपको याद है। बिल्कुल, कुछ यूँ बनकर दिखाएं, वो बनकर दिखाएं जिसकी लोग मिसाल देते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है आपका। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद शुक्रदाने की तरफ से पहले तो हम जश्न आज़ादी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद शुक्रदाने की तरफ से ये चाय है और खूब झूम झूम कर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जी, हमारे साथ एक नौजवान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? एजाज़ अहमद इनका पूरा नाम है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चिलास से। यामर चिलास के किस खूबसूरत गाँव से? थोर से आपका ताल्लुक़ है। थोर में तो मेरे ख्याल में तकरीबन पैसे शैसे मिल के पैसे आए थे मौजूद हुए, लेकिन ये थोड़ा कुछ बाकी बचे हैं, वो आप मोबाइल में मेरे ख्याल में ख़त्म करेंगे। मोबाइल में उड़ाएंगे। तो अच्छा, आज के दिन के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम मेरे गुलाम थे, कितने साल पहले गुरुओं की उम्मत थे, आज अल्लाह ने हमें आज़ादी दी। हम जी नाज़रीन, इस वक्त मैं राजा बाज़ार में हूँ। यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने किस किस्म की यहाँ पर जो है जश्न आज़ादी की तैयारी की है। आइए नाज़रीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका पूरा नाम आप बताना पसंद करेंगे हमारे नाज़रीन को? मेरा नाम मसूद रहमान है, मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं आप जी, आप जो है मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं और हनीसारा टीवी आप देख रहे होंगे, जिसमें हम जो है इलाके की सफाई के बारे में और सुथराई के बारे में जो है वो कुछ प्रोग्राम्स भी करते हैं। और मरकज़ी अंजुमन ताजरान जो है इस बारे में मुकम्मल तौर पे खामोश है। उसके लिए तो हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे आपके सदर साहब को और आपको अपने स्टूडियो दावत देंगे। लेकिन आज के जो प्रोग्राम है खुसूसन जश्न आज़ादी के हवाले से हम यहाँ पे आए, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत ही बड़ा एक बैनर लगाया हुआ जिसमें ये इशारा किया जा रहा है कि आज का दिन हमारे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। इस मुनासबत से आप जो है अंजुमन ताजरान के एज जनरल सेक्रेटरी पूरी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? ये इलाका हमारे 28,000 किलोमीटर जो है ये हमारे आबा अजदाद ने आज़ाद किया है और इसको हम भरपूर तरीके से मनाना चाहते थे, लेकिन मुहर्रम की वजह से हम इसको जी मुहर्रम के एहतराम में इसको इंतहाई सादगी से मनाया जा रहा है। तो इस मौके पे आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कौम को? हम कौम को ये पैगाम देते हैं कि इस दिन को आइंदा के लिए भरपूर तरीके से मनाना होगा और इस चीज़ को खामोशी से ये चीज़ 1 नवंबर जो है वो हमारा वजह के भरपूर तरीके से मनाने का दिन है, लेकिन बस यही अशुरे की वजह से हमने मुहर्रम जो है।
जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि आज के दिन को हमें मनाने चाहिए ताकि हमारे आने वाली नस्ल को पता चले कि ये यकम नवंबर 1947 को और 48 में जो हमारे गाजियों ने, मुजाहिदों ने जो जंग लड़ी और शहादत के दर्जे पे पहुँचे और उन्होंने एक जानों की कुर्बानी देकर इस खित्ते को आज़ाद कराया है। बहुत अच्छा पैगाम आपका है। आपको हनीसारा टीवी की तरफ से, हमारी तरफ से और इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। वो आपकी खुशियों में बराबर का शरीक है, चाय बनाए और मज़े ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। यहाँ पर कुछ नौजवान भी आए हुए हैं खरीदारी के लिए, इनसे भी हम कुछ पूछना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए हैं आज के दिन के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी आपका नाम? आकिब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितने पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में पढ़ते। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जगलोट की जगह से, डमोट से आपका ताल्लुक़ है। तो ये जश्न आज़ादी के बारे में आपको घर में वालिदैन ने बताया, स्कूल में टीचर्स ने बताया, कि वालिदैन ने भी बताया? तो जगलोट में जो जंग हुई थी उसके बारे में कुछ आपको बताया? जो गोंजी में जो जंग हुई थी वहाँ से कुछ डोगरा और सिख वहाँ से भागकर जगलोट के एरिया में घुस गए थे, जहाँ पर जगलोट और सही के जो बिल्कुल नज़ीर भाई, आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि जो जिन गाजियों ने, जिन मुजाहिदों ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया था, उनका मकसद था कि गिलगित बल्तिस्तान में लोग अमन व आशती से रहें और सुकून के साथ रहें। नाज़रीन, ये बहुत अच्छा पैगाम है और हमें अपने इस्लाफ के इस पैगाम को घर घर पहुँचाना है ताकि हम अमन इत्फाक़ के साथ रहें। इस्लामाबाद सुपरदाने की तरफ से आपके लिए खूबसूरत से चाय की टिकट है और इस जश्न में इस्लामाबाद सुपरदाना भी आपके साथ साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्लाम भाई क्या जश्न आज़ादी के हवाले से कोई पैगाम अगर आप देना पसंद करें? जश्न आज़ादी के हवाले से अक्टूबर को गिलगित हमारे गिलगित जो बल्तिस्तान जो है हमारे जवानों ने अपनी दंडों के जोर पर आज़ाद करवाया सके और इस पर पाकिस्तान का और गिलगित के जश्न और उसके दिन को सरकारी तौर पर मनाना चाहिए और जनाब वाली की याद करना चाहिए। इसमें मुझे खुशी है आप इसको आगे तक बढ़ाएं ताकि ये सालाना जो इसको मतलब अच्छी तरीके से इस तरीके से हदफ बना रहे हैं, इस
इसी तरीके से हमारे आज़ाद हमारे लोगों ने करवाया है 14 अगस्त की तरफ हमारा जनाब यकम अक्टूबर जो है मनाना चाहिए। हम यही और तमाम शोधाओं को मैं बिल्कुल लियाकत भाई, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि इसको हमें जो है मुल्की लेवल पे इसको बनानी चाहिए, इस दिन को यादगार बनानी चाहिए। इस्लामाबाद से खुदाने की तरफ से चाहिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और हमारे यहाँ सिक्योरिटी अफसर यहाँ पर मौजूद है जो इस यादगार शोहदा पे यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। जी आपका नाम? शकील खान साहब। शकील खान साहब के लिए हम जो इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से खूबसूरत सा सुपुर्दाने का ये पैकेट आपकी नजर करते हैं कि आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ भी बहुत उरूज पे थी, लेकिन मुहर्रमुल हराम के एहतराम में और पाकिस्तान में जो सिलसिला है खुसूसन ज़िला गिज़र और दीगर इस्लाम में जो तबाही मचाई उस पे में जो है एहतराम के तौर पे सूबाई हुकूमत ने इंतहाई सादगी से जश्न आज़ादी को मनाया। लेकिन हमारे अवाम पुरजोश हैं और अपने इस्लाम के जो पैगाम को अमन के पैगाम को आगे लेकर चल रहे हैं और इसमें जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे जवानों ने, हमारे बच्चों ने अपने व्यूज़ आप तक पहुँचाए हैं। हमारी तरफ से, हनीसारा टीवी की तरफ से और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से हम इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।